Good morning, students. Good morning, ma'am. So today we are going to deal with another topic, which is one of the topic from your same chapter, that is improvement in food resources. Okay. So in that only we are going to study about next topic, that is about poultry farming. Okay. In the last lecture we have discussed about cattle farming. ठीक है, हमने animal husbandry start किया था. We have ended before that. We have completed about crop variety improvement, crop production management and crop protection management related to what? Agriculture. And जैसा हमने पहले भी discuss किया था, this chapter is divided into two parts, that is one is agriculture part and second is animal husbandry. Okay, so agriculture part we have discussed in detail regarding crop production, crop management, crop protection, and also to improve the variety of crops. Okay, that all things we have covered, different techniques we have seen, different methods we have studied. Okay, so what we are studying now, animal husbandry, in which we need to take proper care, proper management of animals to get proper what? Food also, as well as for that is nothing but the products, right? The products which we are getting from the animal source. For that we need to what? Manage the animals accordingly. So that proper care of that animal, proper cleaning of that particular animal, proper hygienic conditions, proper health conditions of that animals, that is nothing but comes under animal husbandry. Okay, animal management, animal husbandry, or proper take care care of that particular animals. Okay, so in that we have completed about cattle farming. अभी cattle farming में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी related to breeding, related to feeding, related to disease control, right? Everything we have studied related to the cattle farming, कि जिसमें हमको basically cows, buffaloes and all, right, which are included under cattle, cows and all, through which we can get what? Dairy products, है ना, milk and milk products, other dairy products. And also we can use some animals, that is draught animals, for the labor work in the field, है ना. ये सारी चीज़ें हमने देख लिया था. Now we are heading towards the poultry farming. So as the name says, poultry farming, that means what? We will talk about what? The birds, basically egg laying, or through which we can get meat. Okay, chicken meat as well as eggs. Fine. So हम इसमें basically we are going to deal with about hens. Right, basically उसके ही बारे में हम देख रहे हैं, not with respect to some other birds also. There are certain birds, other birds also, through which we can get what? Eggs also, as well as meat also. Okay, but here basically we are dealing with the egg laying birds, that is nothing but what? This hen, है ना, and the other some other examples as well. Fine, तो one by one करके हम देखते हैं. Basically poultry farming, it is what? It is the farming of domestic fowl. Fowl means nothing but the bird. Okay, fowl का मतलब ही होता है bird, but obvious सी बात है, ये सारे जो कैटेगरीज होते हैं एनिमेलिया किंगडम, इफ इन हायर क्लासेस इफ वी विल स्टडी अबाउट एनिमल्स इन डिटेल, तो उसमें आपको पता चलेगा. इफ वी स्टडी अबाउट फिशेज, इफ वी स्टडी अबाउट एम्फीबियंस, इफ वी स्टडी अबाउट रेप्टाइल्स, इफ वी स्टडी अबाउट एव्स और द बर्ड्स, एज वेल एज इफ वी स्टडी अबाउट द मैमल्स, ऑल आर इंक्लूडेड अंडर किंगडम एनिमेलिया ओनली. ओके, ये सारी चीज़ें आपको हायर क्लास में थोड़ा सा पता चलेगा. ठीक है, बट बेसिकली यहाँ पर हम पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका डेफिनेशन ही ऐसा हो जाएगा. इट इज़ अ फार्मिंग ऑफ डोमेस्टिक फाउल और द बर्ड फॉर व्हाट? फॉर टू पर्पसेज मेनली, फॉर गेटिंग द एग, दैट इज एग प्रोडक्शन, एंड फॉर गेटिंग द मीट, दैट इज चिकन meat. Okay, so it is the farming basically of what? Domestic fowl or the birds in order to get the egg production as well as for the chicken meat production. अब आप इसके बारे में जो आपको पढ़ना है, so that is related to what all food, okay, which we can provide to that particular fowl or the bird in order to get the good product of interest from this particular animals or the organisms, that is nothing but here we are talking about birds. Okay, तो उनसे हमको कैसे मिल रहे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, नंबर कितना होना चाहिए, ब्रीडिंग कैसे करवा सकते हैं हम. ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग हमको पहले भी पता है, हमने प्लांट्स के केस में भी देखा है, हमने कैटल फार्मिंग में भी देखा है, एंड हम वापस से यहाँ पर भी देखेंगे इन केस ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग. ओके, डिजीज कंट्रोल हमने, प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप्स, ओके, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इनसे कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है प्लांट्स को, ये भी देखा हमने. कैटल्स को भी वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीन टाइम टू टाइम देना पड़ता है, वो भी देखा हमने. इन द सिमिलर मैनर यहाँ पर भी हम देखेंगे कि हाउ वी कैन कंट्रोल द डिजीज इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर व्हाट? डोमेस्टिक फाउल्स. ओके, नेक्स्ट
इम्प्रूव्ड पोल्ट्री ब्रीड्स, अभी हमने बात कर रहे थे हम ब्रीडिंग की, राइट, प्रॉपर क्रॉस ब्रीडिंग. सो इंडिजिनस और द लोकल ब्रीड्स एज वेल एज वी ऑल्सो हैव फॉरेन और एक्सॉटिक ब्रीड्स, है ना. तो उन दोनों में कुछ ना कुछ खासियत होगी, कुछ डिज़ायरेबल ट्रेट्स होंगे, डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ होगी जिसको हम यूज़ करेंगे फॉर द प्रॉपर ब्रीडिंग और द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम, है ना, जिसमें बताया जाता है कि कौन से गुड कैरेक्टरिस्टिक एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ में होगा, दूसरे में भी होगा, और दोनों को जब क्रॉस करेंगे तो वी विल गेट गुड वैरायटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रीड. ओके, दोनों का मिक्स करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सुपीरियर ही होना चाहिए ना, तो वो चीज़ें हम इसमें भी क्रॉस ब्रीडिंग में भी यूज़ करते हैं, राइट. So improved poultry breeds are developed to produce what? Layers, है ना. अभी जो egg laying वाले जो birds होते हैं, they are known as what? जिनसे हमको egg मिलता है, that is known as layers. और जिनसे हमको meat मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं उस variety को? Broilers. Okay, मतलब chicken meat जिससे आपको मिल रहा है that is known as broilers. जिनसे हमको eggs मिल रहा है that is known as layers. ठीक है, इन दोनों का description भी आपको आता है, difference between आता है. What is the main difference between what? Layers and the broilers. तो पहला difference तो यही हो जाता है कि जो लेयर्स है उनसे आपको एग मिलता है और जो ब्रॉयलर्स हैं उनसे आपको मीट मिलता है. ओके, दोनों के डाइट की बात करेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट, पढ़ेंगे हम आगे चलकर. ठीक है, अगर लेयर्स की बात करते हो और ब्रॉयलर्स की बात करते हो तो उसमें ऑब्वियस सी बात है, लेयर्स मतलब एग लेइंग वाले रहेंगे तो इनमें विटामिन मिनरल ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, राइट. देन स्पेशली कैल्शियम, ये चीज़ें इसमें ज़्यादा होनी चाहिए इन केस ऑफ लेयर्स. वही अगर आप ब्रॉयलर्स की बात करोगे तो इसमें तो विटामिन ए के इसकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, राइट. फैट होना चाहिए, प्रोटीन्स होना चाहिए, है ना. तो ये चीज़ें, इनका डाइट भी उस तरीके से उनको फीड करोगे तभी तो उस तरीके का प्रोडक्ट आपको मिलेगा. अदरवाइज उनको खाने के लिए चीज़ें हम बहुत चीप क्वालिटी का दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे खाने को, तो ऑब्वियस ही बात है उनसे कोई प्रोडक्ट मिलेगा कि अच्छा नहीं मिलेगा, राइट. सो दैट इज़ वाई उनका केयर लेना ज़रूरी है कि उनको आप क्या खाने को दे रहे हो, ठीक है, क्या कैसे उनको शेल्टर कहाँ किस जगह पे रख रहे हो, कितना बॉडी उनका क्लीन रख रहे हो, कितना अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली यू विल गेट द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज एग्स एंड चिकन मीट इन दिस केस. सेकेंडली, अब क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में एक एक करके प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे. जैसे क्रॉस ब्रीडिंग होगा, देन फीडिंग, देन डिजीज कंट्रोल, ठीक है, देन डिफरेंस बिटवीन ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स, तो अभी हमने थोड़े से पॉइंट्स देख लिए थे, ठीक है. सो दैट वी विल सी वन बाय वन. फाइन. तो देखो यहाँ पर क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, अभी क्रॉस ब्रीडिंग बोला है मतलब क्या, इसमें आप दो वैरायटीज़ को क्या कर रहे हो, आपस में ब्रीडिंग करवा रहे हो, राइट, क्रॉसिंग करवा रहे हो. तो एक का कैरेक्टरिस्टिक, दूसरे का कैरेक्टरिस्टिक्स, 1+1 2 कैरेक्टरिस्टिक, तो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के. नेक्स्ट वाला जो ब्रीडिंग करने के बाद जो ऑफस्प्रिंग आ रहा है, दैट इज गोइंग टू कैरी ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स टू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम बोथ द दिस क्रॉस ब्रीडिंग पेरेंट. ओके, क्रॉस जिस भी पेरेंट्स में हम क्रॉसिंग करवा रहे हैं उनसे जो है हमको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है जिस भी ऑर्गेनिज्म से, तो दैट विल बी ऑफ हाई क्वालिटी. ओके, सो देखो क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स बिटवीन इंडियन, या जिसको हम लोकल स्पीशीज़ बोलते हैं, इंडिजिनस बोलते हैं, ठीक है, लोकल वैरायटी बहुत सारे हैं, बट आपके सिलेबस में जो दिया गया है एंड जो एग्जाम्पल भी हम पढ़ रहे हैं जनरली, दैट इज व्हाट, असील. ओके, असील इज़ अ वैरायटी ऑफ इंडिजिनस या इंडियन और लोकल वैरायटी. फाइन, लोकल ब्रीड, एंड उसको क्रॉस करवा रहे हो आप किसके साथ, फॉरेन ब्रीड के साथ, एक्सॉटिक ब्रीड के साथ. फॉर एग्जाम्पल व्हाट, लेगहॉर्न, है ना. अब दोनों की प्रॉपर्टी कंबाइन होगी तो ऑब्वियसली जो नई वैरायटी आएगी तो वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा ना, बेटर होगा कि नहीं होगा, राइट. सो this cross breeding aims to develop new varieties for the following desirable characteristics. अब आप जब अगर क्रॉसिंग करवा रहे हो तो आपको बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सही मिलने चाहिए ना. अगर समझो जो पेरेंट से भी बहुत लो क्वालिटी का मिल जाएगा तो मतलब क्या है आपको क्रॉस ब्रीडिंग करवाने का, राइट. फॉर विद अ पर्पस वी आर डूइंग दिस थिंग. एनिमल हस्बेंड्री में आप पर्पसली, आपको प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, है ना, प्रोडक्ट्स चाहिए एनिमल से. सो दैट इज़ वाई वी आर फॉलोइंग दिस टाइप ऑफ टेक्निक्स या मेथड्स. ओके, अदरवाइज जैसे क्रॉप ग्रो हो रहा है, आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो वो तो हो ही रहा है, बट आपका पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है, इतना इंक्रीज हो रहा है, तो इम्प्रूव्ड और क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स चाहिए ना, तो उसके लिए हम इम्प्रूव कर रहे हैं उसकी वैरायटी को. तो वैसे ही अगर एनिमल सोर्स के ऊपर भी तो वी आर डिपेंडेंट ऑन बोथ, राइट, प्लांट सोर्सेज एज वेल एज एनिमल सोर्सेज. तो दोनों के सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं हम, हमारा सर्वाइवल. तो दोनों के ही सोर्सेज से आपको जो भी प्रोडक्ट आ रहा है दैट शुड बी ऑफ इम्प्रूव्ड क्वालिटी, राइट. चलो, सो व्हाट आर द डिजायरेबल ट्रेट्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स विच शुड बी देयर इन द न्यू वैरायटी, है ना, दैट आर एज फॉलोज. वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं. पहला है उसमें नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स. अब नंबर एंड क्वालिटी, है ना, जितनी जो न्यू वैरायटी मिल रही है उसका नंबर भी ज़्यादा मिलना चाहिए,
और क्वालिटी चिक्स वो प्रोड्यूस करने चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, जो भी न्यू जनरेशन न्यू वैरायटी आ रही है उससे भी तो फिर अगला आएगा वैरायटी, अगला जनरेशन भी आएगा, तो उसमें जो चिक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं दैट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, ओके, कि जो आपको आगे चलकर प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट अच्छी क्वालिटी का अच्छे अमाउंट में और अच्छा न्यूट्रिशन के साथ जो है प्रोवाइड कर सके, ओके। सो दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड जो है ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट, है ना। ड्वार्फ का मतलब होता है शॉर्ट, वेरी शॉर्ट हाइट, ठीक है, शॉर्ट हाइट वाला। अभी जैसे बहुत लार्ज साइज वाला समझो अगर मैंने कोई ऑर्गेनिज्म यूज़ कर दिया और उससे प्रोडक्ट आपको बहुत कम मिल रहा है तो भी तो कोई मतलब नहीं है, राइट। तो ऐसी वैरायटी डेवलप होनी चाहिए जिसकी हाइट भी कम हो, ड्वार्फ वैरायटी हो, ड्वार्फ ब्रॉयलर। ब्रॉयलर का मतलब क्या था यहाँ पर? मीट प्रोड्यूस करने वाला, राइट, थ्रू विच वी कैन गेट चिकन मीट। तो उसका साइज कैसा होना चाहिए? ड्वार्फ होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट और ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट इज रिक्वायर्ड फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन, क्योंकि उसी से हमको क्या मिलना है फिर आगे चलकर? मीट, ओके। समर अडेप्टेशन कैपेसिटी, थर्ड जो है कैसी होनी चाहिए वैरायटी? समर अडेप्टेशन कैपेसिटी होनी चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो हाई हीट अगर बहुत हुआ उसको भी टॉलरेट करने की इसके पास क्षमता होनी चाहिए, राइट। दैट मीन्स अगर समझो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है तो कंडीशन क्या हो सकता है? हो सकता है जो आपका नेक्स्ट जनरेशन न्यू वैरायटी जो फॉर्म होने वाला है इट विल गेट डिस्ट्रॉय या किल्ड, है ना, या कुछ भी उसको नुकसान हो सकता है। सो इट शुड बी एबल टू टॉलरेट सच अ हाई टेम्परेचर। समर अडेप्टेशन कैपेबिलिटी उनके पास होनी चाहिए, ओके। समर टॉलरेंस, बहुत ज़्यादा हीट कंडीशन हो गया तो भी ये टॉलरेट करने चाहिए और हमको प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा देना चाहिए, ओके। सो ये भी उनके अंदर खासियत होनी चाहिए। ये सारे चीज़ें हम डिज़ायरेबल ट्रेट देख रहे हैं, डिज़ायरेबल मनचाहा कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, जैसा हमें चाहिए वैसा होना चाहिए। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें न्यू वैरायटी के अंदर डेवलप होनी चाहिए, तब तो ये सब चीज़ें आपका बैलेंस रहेगा, है ना, तब हमें जो प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा मिलेगा, क्वालिटी भी सही रहेगी। देन है लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स, ओके। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स दैट मीन्स व्हाट? लो मेंटेनेंस बोला है, अभी देखो अगर आपके जो न्यू वैरायटी फॉर्म जो आप करवा रहे हो, ठीक है, या जिस पेरेंट से आप करवा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है अगर बहुत ज़्यादा उसको रिक्वायरमेंट लगेगा तो क्या होगा? आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा आप पैसे खर्च कर रहे हो उसके लिए, बट आपको जो है आउटकम उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट्स कितना कैसा होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए, ठीक है। लो रिक्वायरमेंट्स में भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए, ऐसी आपकी वैरायटी होनी चाहिए, ओके। या ऐसा पेरेंट आप यूज़ करो जिसको मिनिमम रिक्वायरमेंट में भी मैक्सिमम प्रोडक्ट आपको मिले, ओके। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ लो रिक्वायरमेंट, लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। देन इज रिड्यूस्ड साइज ऑफ द एग लेइंग बर्ड, ये इसके जैसा ही हो गया। डॉर्फ ब्रॉयलर आपने बोला था, ठीक है, तो रिड्यूस साइज वाले, छोटे साइज वाले जो है ये एग लेइंग बर्ड भी जो है व्हाट यू कैन से प्रोड्यूस होने चाहिए, बट इट शुड हैव द एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइब्रस चीपर डाइट्स, ओके। डाइट्स, चीपर डाइट मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ें आप उसको दे रहे हो तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा। कमर्शियल होना चाहिए, है ना, कमर्शियली इकोनॉमिकली इट शुड बी बेनिफिट दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज एंगेज्ड इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस, है ना। पोल्ट्री फार्म होता है ना, बहुत लोगों का पोल्ट्री फार्म होता है जिसमें वो लोग क्या करवाते हैं? इसी का बिजनेस करते हैं, किसका? एग्स एंड मीट प्रोडक्शन, एग्स एंड चिकन मीट का, ओके। तो उसके लिए उनको पहले थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनको प्रोडक्शन कम मिल रहा है तो फिर उनका क्या हो जाएगा? वो लॉस में जाएंगे, राइट। बट ये एनिमल मैनेजमेंट ये या एनिमल हस्बेंड्री में हम यही देखते हैं कि पर्पसफुली ये किया जा रहा है एंड इससे जो इन्वेस्टमेंट कम से कम होनी चाहिए और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। एंड ऑब्वियसली वी शुड नॉट हार्म द एनिमल्स, बट ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं जो है अगर चिक का प्रोडक्शन, मीट का प्रोडक्शन जो हो रहा है, चिकन मीट एंड ऑल, तो ऑब्वियसली दैट पर्टिकुलर जो बर्ड है या ब्रॉयलर है, ठीक है, वो क्वालिटी वो सही दे रहा है, मीट का प्रोडक्शन दे रहा है, बट ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं वो किल हो रहा है ना, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर पे भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज देयर वुड बी इम्बैलेंस इन द इको सिस्टम, ओके। सारी चीज़ें साइकिल जो है आपका बैलेंस रहना चाहिए इन द नेचर, ओके। चलो नेक्स्ट, यस, जो डाइट उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, अब देखो चीपर फाइब्रस चीपर डाइट्स, ठीक है, कम से कम तो आप ठीक है बहुत चीप डाइट उनको दे रहे हो, बट न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट में उनको मिलना चाहिए, प्लस इट शुड बी फॉर्मुलेटेड विद सम अदर एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट्स ऑल्सो। फॉर्मुलेशन का मतलब होता है कि कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स, है ना, एक्स्ट्रा चीज़ें जो है फोर्टिफिकेशन भी बोल सकते हो, कि जितना न्यूट्रिएंट्स आपको उस वाले प्रोडक्ट से मिल रहा है उससे और ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी का मिलना चाहिए, और ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए, सो दैट कैन बी डन बाय यूजिंग बाय डूइंग द फॉर्मुलेशन,
ओके, इट्स अ टेक्निक जिसमें आप न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है उसका मतलब न्यूट्रिएंट्स का जो कंटेंट है वो और ज़्यादा बढ़ा देते हो। ओके, इज दैट क्लियर? सो दीज आर सर्टेन डिजायरेबल ट्रेड्स बोल सकते हो दैट शुड बी देयर व्हेन यू आर डेवलपिंग द न्यू वैराइटीज। ओके, बाय विच टेक्निक? क्रॉस ब्रीडिंग। ओके, जिसमें आप इंडिजिनस या लोकल ब्रीड्स यूज़ कर सकते हो, या उसके साथ में उसी के साथ में आप किसको क्रॉस ब्रीडिंग करवा रहे हो? फॉरेन ब्रीड्स को। ओके, फॉर एग्जांपल असील एंड लेगहॉर्न। एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन, अब इसमें हमने पहले ही उसका थोड़ा जो है व्हाट यू कैन से डिफरेंस है ना बिटवीन द लेयर्स एंड दी ब्रॉयलर्स, दोनों भी देख लिया है। तो पहले ब्रॉयलर चिकन्स क्या होते हैं? ब्रॉयलर चिकन्स आर फेड विथ, मतलब इनका डाइट अगर हम देखें, दे आर फेड विथ मेनली विटामिन रिच सप्लीमेंट्स, ठीक है, फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। मतलब इनका गुड ग्रोथ रेट भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, देयर ग्रोथ रेट शुड बी हाई, ठीक है, एंड फीड एफिशिएंसी, जो भी आप उसको खाने के लिए दे रहे हो, दैट शुड एबल टू प्रोवाइड इट मोर अमाउंट ऑफ व्हाट? विटामिन्स, है ना। अब उनको विटामिन रिच डाइट अगर मिलेगा तब तो उनसे जो मीट का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका भी कंटेंट, उसके अंदर भी न्यूट्रिशन जो है वो ज़्यादा रहेगा, राइट, विटामिन कंटेंट ज़्यादा रहेगा। फाइन। सेकेंडली, दे आर मैनेज टू प्रिवेंट मॉर्टेलिटी, है ना। मॉर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट होता है कि बहुत ज़्यादा अगर इनिशियल स्टेज उनका डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, उसके पहले ही वो मर गए, तो उनसे प्रोडक्शन क्या मिलेगा, राइट। सो डेथ रेट भी कम से कम होना चाहिए। टू मेंटेन द फेदरिंग एंड कार्कास क्वालिटी, इसका मतलब होता है अभी बर्ड्स है तो फेदर्स तो रहेगा, राइट, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फेदरिंग क्वालिटी भी उनकी सही रहनी चाहिए। और कार्कास क्वालिटी मतलब जैसे ऑब्वियसली हम ब्रॉयलर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ब्रॉयलर से हमको चिकन मीट मिल रहा है, ठीक है, तो जो कार्कास क्वालिटी है आफ्टर द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर बर्ड, ओके, तो जिनसे जो मीट मिलने वाला है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कार्कास क्वालिटी। ओके, and then obviously they are sell in the मतलब they are distributed in the market for the selling purpose, right, for the meat। तो ये ब्रॉयलर चिकन्स के बारे में। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर गुड प्रोडक्शन, मैनेजमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड हाइजीनिक कंडीशंस। अभी हम तो पूरा मैनेजमेंट के ऊपर ही देख रहे हैं ना, ठीक है, बट यहाँ पर एनिमल्स की बात हो रही है। पहले क्रॉप्स का मैनेजमेंट देखा, अब एनिमल्स का मैनेजमेंट देख रहे हैं। ओके, so maintenance of temperature and hygienic conditions in housing and poultry feed। housing जहाँ पे उनको रखा जा रहा है, शेल्टर कहाँ पर आप उसको रख रहे हो, हाइजीनिक कंडीशन, प्रॉपर बॉडी क्लीनलीनेस है या नहीं है, ठीक है, सो दैट इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट। उनको मेंटेन ही आप नहीं कर रहे हो तो उनसे प्रोडक्शन आपको कैसे मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, सेकेंडली, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस एज वेल एज पेस्ट अगेंस्ट वेरियस बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, है ना, इनसे इनको क्या बचाना चाहिए? हमको बचाना चाहिए ऑब्वियसली, अदरवाइज इनको खुद को ही डिजीज़ हो जाएगा। तो इनसे बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, इफ़ वी आर ईटिंग दोज प्रोडक्ट्स दैट इज़ एग्स एंड योर मीट, तो ऑब्वियसली दैट पर्सन विल ऑल्सो गेट दैट पर्टिकुलर डिजीज़। ओके, सो दैट इज़ वाई पहले इनको बचाना है डिजीज़ से, तो उसके लिए इनको प्रॉपर वैक्सीन देना ज़रूरी है ना, तो वो आ जाएगा उनका प्रॉपर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिजीजेस। इज दैट क्लियर? ठीक है, सेम चीज़ आपको डील करना है, जस्ट थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। कैटल फार्मिंग में वी वर डीलिंग विथ व्हाट? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ पर वी आर डीलिंग विथ एग्स एंड मीट प्रोडक्शन। ओके, उसमें वहाँ पर ब्रीडिंग जो करवा रहे थे वहाँ पे रेड सिंधी साहिवाल एग्जाम्पल्स देखा था हमने, राइट। यहाँ पर एग्जाम्पल्स किसका है? आपके पोल्ट्री फार्म एनिमल्स का, जैसे कि असील हो गया इंडिजीनस वाला, एक्जॉटिक का आपका क्या हो गया? लेगहॉर्न हो गया, ठीक है। तो क्रॉस ब्रीडिंग करवा रहे हो तो डेवलप कराओगे न्यू वैराइटीज, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए अच्छे अच्छे, हमने देखा था यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। देन फीडिंग प्रॉपर्टी, उनको विटामिन रिच डाइट देना चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट देना चाहिए, फैट भी रहेगा उसके अंदर, राइट, तभी तो उनसे वही सारे न्यूट्रिएंट्स किसको मिलेगा? द पर्सन हु आर कंज्यूमिंग इट, ओके, एंड प्लस जो सेल कर रहा है उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपका जो है पोल्ट्री फार्मिंग में आ जाता है। ओके, इज दैट क्लियर? कुछ और पॉइंट्स है, राइट। ब्रॉयलर्स हैव डिफरेंट हाउसिंग, न्यूट्रिशनल, एनवायरमेंटल नीड्स एज कम्पेयर टू द लेयर्स। तो ब्रॉयलर्स है जिनसे हमको मीट मिल रहा है, तो उनके अंदर फैट का कंटेंट, प्रोटीन का कंटेंट, विटामिन का कंटेंट, ए और है ना दिस पर्टिकुलर ए एंड के, राइट, विटामिन ए एंड के कंटेंट शुड बी हाई इन केस ऑफ ब्रॉयलर्स। इज दैट क्लियर? ये उनका डाइट है। अभी देखो, वी आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस पोल्ट्री फार्मिंग ऑक्यूपेशन, ओके, ये वाले हम प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं है, बट वी आर स्टडिंग जस्ट बिकॉज टू नो कि व्हाट अदर ऑक्यूपेशंस आर देयर थ्रू विच यू नो which can become the source as a food also as well as for what business also, okay, for economic purpose also। तो उसके वाइज हम ये इसको देख रहे हैं एंड जस्ट उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि what is actually poultry farming, okay। फिर आपको क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में बताना है,
फीडिंग के बारे में बताना है, दैट इज़ उनका डाइट के बारे में, प्रॉपर हाउसिंग, प्रॉपर शेल्टर, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, सब सारी चीज़ें हमने कैटल फार्मिंग में भी देखा, यस और नो, राइट. तो इन द सिमिलर मैनर इनका भी हाइजीनिक कंडीशन, प्रॉपर हाउसिंग, शेल्टर, फीडिंग प्रॉपर्टीज़, ये क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें इनमें भी मैनेज होनी चाहिए. ओके. ब्रॉयलर फीड इज प्रोटीन रिच विथ एडिक्वेट फैट, हाई लेवल्स ऑफ विटामिन ए एंड के. वही अगर लेयर्स की आप बात करोगे तो लेयर्स में ज़्यादा क्या होना चाहिए, मतलब लेयर से हमको क्या मिल रहा है, एग्स मिल रहा है, राइट. तो एग्स इज अ सोर्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ व्हाट, विटामिन का सोर्स है, मिनरल्स का सोर्स है, दैट स्पेशली कैल्शियम, राइट. कैल्शियम उससे मिलता है. सो वैसा डाइट जो है आपको लेयर्स को प्रोवाइड करना चाहिए जिनसे हमको एग का प्रोडक्शन होता है. और ब्रॉयलर्स के लिए कैसा प्रोवाइड करना चाहिए, फैट रिच होना चाहिए, विटामिन ए एंड के रिच होना चाहिए, राइट. प्रोटीन रिच होना चाहिए, सो दैट ये सारे न्यूट्रिएंट्स उस पर्टिकुलर ब्रॉयलर में हो, मीट में हो, सो दैट जो भी पर्सन इसको कंज्यूम कर रहा है दैट ही और शी इज़ एबल टू गेट सर्टेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ओके. तो पहले तो हम ये इसकी बात कर रहे हैं, फिर वो सेकेंडरी तो फूड सोर्स हो जाएगा. ओके. पहले इनका मैनेजमेंट होगा तभी तो फिर फूड सोर्स जैसा हम उसको यूज़ कर सकते हैं, यस और नो, यस. ओके. डिजीज कंट्रोल लास्ट. पोल्ट्री फाउल सफ़र फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस विच कैन कॉज्ड बाय वायरसेस. आपने बर्ड फ्लू के बारे में सुना होगा, राइट, है ना. तो जो है आपके जो बर्ड्स है या जो पोल्ट्री फार्म एनिमल्स हैं, दे कैन गेट इन्फेक्टेड बाय वेरियस बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड ऑल, राइट. पैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट हो सकते हैं बॉडी के बाहर, या एंडोपैरासाइट्स हो सकते हैं बॉडी के अंदर, एज वेल एज कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनमें न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो. कब हो सकता है, जब आपने प्रॉपर उसको फूड डाइट के तौर पे दिया ही नहीं है, राइट. विटामिन ए, के, फैट, प्रोटीन, ये सारे ऐसे कुछ फूड आइटम्स उनको खिलाया ही नहीं है जिनसे उनको ये सारे न्यूट्रिएंट मिलता. तो ऑब्वियसली दैट पर्टिकुलर वैरायटी वुड बी डेफिशिएंट इन सर्टेन काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए. Then only we can prevent the diseases in this particular poultry farm animals. Is that clear? Preventive measures, proper cleaning, sanitation, right? Time to time disinfectants का जो है spray होना चाहिए in that particular area where it is kept. Okay? जहाँ पे भी इनको रखा गया, sanitize तो हम भी करते हैं ना, proper hand washing and all we are also doing, right? In the similar manner इनको भी जिस place पे रखा जा रहा है वो place को properly disinfect करना चाहिए, राइट. सो दैट इट वुड बी फ्री फ्रॉम सर्टेन काइंड्स ऑफ जर्म्स, है ना. बैक्टीरिया, वायरस वहाँ पे ना हो, उस जगह पे इनको रखना चाहिए. फाइन. प्रॉपर वैक्सीनेशन, टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन इज मस्ट, अदरवाइज योर फाउल या फिर जो भी डोमेस्टिक फाउल्स की हम बात कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्म एनिमल्स, इट विल गेट व्हाट, डिजीज. तो वैक्सीनेशन, अगर हम वैक्सीनेशन शेड्यूल इनका भी फॉलो कर रहे हैं तो वी कैन प्रोटेक्ट और प्रिवेंट द डिजीजेज और यू कैन से स्प्रेड ऑफ द डिजीजेज इन दिस पर्टिकुलर what, poultry farm animals. Okay, so with this we have completed poultry farming also. Next topic we will see in the next lecture. Okay, thank you.